جیالے چیئرمین کا وفاق سے صوبوں کو مزید اختیارات دینے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کا 18ویں ترمیم سے دستبردار ہونے سے بھی انکار۔ وفاق کی مشکلات دور کرنے کے لیے بھی ٹیکس کلیکشن میں مدد کی پیشکش بھی کرتی۔ قومی ادارہ امراض قلب میں نئی او پی ڈی بلاک کا افتتاح کیا۔ بولے 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کے بدولت NICVD ملک بھر کے مریضوں کو علاج فراہم کرتا ہے۔ عاجز جمالی کی یہ رپورٹ۔ سندھ سرکار صحت سہولیات فراہم کرنے میں بازی لے گئی۔ NICVD کے نئے OPD بلاک کی افتتاحی تقریب۔ جیالے چیئرمین کا بچوں کے علاج کے لیے دیگر اضلاع میں سینٹرز بنانے کا اعلان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے OPD کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پیپلز پارٹی نے سندھ میں علاج کے لیے عالمی معیار کی سہولتوں کا دعویٰ کیا اور 18ویں ترمیم پر تنقید کرنے والوں کو NICVD دیکھنے کی دعوت بھی دے دی۔ بولے 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کی بدولت NICVD ملک بھر کے مریضوں کو علاج فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف سندھ حکومت یا لوکل گورنمنٹس یا پروونشل گورنمنٹس میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، چاہے ہم نے واضح طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت سے بہتر یہ ادارہ چلا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے وفاق سے صوبوں کو مزید اختیارات دینے کا مطالبہ کیا، وہیں 18ویں ترمیم سے دستبردار ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وفاق کی مشکلات دور کرنے کے لیے ٹیکس کلیکشن میں مدد کر سکتے ہیں۔ کہ صوبہ سندھ تیار ہے کہ ہم سیلز ٹیکس آن سروسز کلیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو ہمیں ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ ٹارگٹ پورا کریں گے اور وہ پورا کا پورا پیسہ وفاق کو جمع کر دیں گے تاکہ وہ اپنے ضروریات پورا کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق سے 3 ہسپتال جب سندھ کو ملے تھے تو ان کا بجٹ 1 ارب 90 کروڑ روپے تھا۔ آج مذکورہ تینوں ہسپتالوں کا بجٹ 40 ارب سے زیادہ ہے۔ گورنمنٹ نے ان 3 ہسپتالوں کا NICH، JPMC اور NICVD کہ بجٹ زیرو کر دیا، اور انہوں نے کہا آپ اس کو سنبھالیں۔ تو آپ کین امیجن، ہم نے اپنے بجٹس بنا لیے۔ جولائی کی ڈیٹ بھی یاد ہے مجھے، 7 جولائی میرے پاس فائنانس سیکرٹری آئے، وی وینٹ ٹو دی چیف منسٹر کہ جی ہمیں امیڈیٹلی کرنے۔ اس وقت اس تینوں اسپتالوں کا بجٹ تھا ملا کے 1.9 بلین روپیز۔ آج ان تینوں اسپتالوں کا بجٹ ملا کے 40 ارب روپے ہے، 40 بلین۔ تقریب سے وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو، صوبائی وزراء شرجیل میمن، ذوالفقار شاہ، پروفیسر طاہر صغیر، مشتاق چھاپڑا اور دیگر نے خطاب کیا۔ کیمرامین تراب علی کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ سندھ اسمبلی نے لیٹرز اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ کا ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ وزیر داخلہ نے ساحلی سیکیورٹی کے لیے میری ٹائم پولیس فورس بنانے کی تجویز دی، جبکہ شرجیل انعام میمن نے پرانی بسیں ختم کر کے ٹرانسپورٹرز کو بلا سود قرضے دینے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی میں قانون سازی کی گونج، مختصر کارروائی میں بڑے فیصلے ہو گئے۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس مختصر کارروائی کے بعد ملتوی ہو گیا۔ اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری محمد یوسف بلوچ نے محکمہ معدنیات سے متعلق سوالات کے جواب دیے۔ وزیر قانون ضیاء الحسن نجار نے سندھ لیٹرز اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ کا ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا، جس کے تحت اب وراثتی سرٹیفکیٹ سیشن جج کے بجائے نادرہ جاری کرے گا۔ I rise to introduce Government Bill number 22 of 2025, a bill to amend the Sindh Letters of Administration and Succession Certificates Act 2021. The bill is introduced. سینئر وزیر شرجیل میمن نے ایوان کو بتایا کہ سندھ میں 500 نئی EV بسوں کی منظوری دے دی گئی ہے اور خستہ حال بسوں کو ختم کر کے نئی نجی بسیں لانے کے لیے ٹرانسپورٹرز کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ ہم نے پرائیورٹائز کیا کہ کون کون سے روٹس پہ کس طرح بسیں کو کرانا ہے۔ آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ہمیں منظوری دی ہے ایک 500 EV بسز کی، یہ ایک بہت بڑا چنک ہے، وہ بھی آ رہا ہے، اور 500 EV بسز وہ بھی آ رہی ہیں۔ پلس میں ہم مختلف کمپنی سے اور بھی بات کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش سر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ EV بسز کو پورے سندھ بھر میں لے کر آئیں۔ اجلاس کے دوران MKM کے رکن راشد خان نے نئے ڈیفنس فورس سربراہ کی تقرری پر مبارکباد پیش کی، جس پر PTI کے حامی اراکین نے شور شرابہ کیا۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔
सिंध हुकूमत ने 10 बरसों के बाद सरकारी महकमों और इदारों में बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 2011 में सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बाद तवील अरसे तक हजारों खाली असामियां पुर न हो सकी। अब 1 से 4 ग्रेड तक भर्तियों का अमल तमाम महकमों में शुरू किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज एजुकेशन, सेहत, आबपाशी, ज़रा, दाखिला, ट्रांसपोर्ट, मेहनत और अफरादी कुव्वत समेत दर्जनों महकमों में नई भर्तियां की जाएंगी। SSU पुलिस ने गुलशन मेमार से भत्ताखोर मुलजिम उसामा को हिरासत में ले लिया। मुलजिम खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से हैक करके भत्ता तलब करता था। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम खवातीन को सोशल मीडिया के जरिए हिरासा करता था और उनसे भारी रकूम तलब करता था। गिरफ्तार मुलजिम थाना गुलशन मेमार में भत्ते के मुकदमे में पहले से मतलूब था और एक खातून से 10 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा भी कर चुका था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन बरामद कर लिया। मुलजिम के साबिका रिकॉर्ड की जांच का अमल जारी है, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सिंध पुलिस ने सूबे भर में बगैर नंबर प्लेट और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। IIT सिंध ने सिंध भर के तमाम जोनल DIGs और SSPs को कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सिंध भर में बगैर नंबर प्लेट्स और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। IG सिंध ने कराची समेत सिंध भर में कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। कराची, सखर और लाड़काना रेंज को भी अहकाम जारी कर दिए गए। इस हवाले से तमाम जोनल DIGs और SSPs को भी खत लिख दिया गया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से जारी लेटर City 21 ने हासिल कर लिया। खत के मतन के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों को रोका जाए, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए, जबकि बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां जब्त की जाएंगी। खुले मैनहोल बच्चों के लिए खतरा। शहर कायद में खुले मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगूपीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा मैनहोल में गिर गई। इलाका मकीनों के मुताबिक जाय वकुआ से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बरवक्त खुले मैनहोल से निकाल लिया। बच्ची की शनाख्त अनाया अमीन के नाम से की गई, जो स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रही थी कि स्कूल के सामने मैनहोल में गिर गई थी। इलाका मकीनों ने हुकूमत और बल्दियाती इदारों से मैनहोल बंद करने का मुतालबा किया है। एक हफ्ते में 301 गिराफरोशों पर 21,27,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते में 301 गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मजमूई तौर पर उन 301 गिराफरोशों पर 21,27,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। जनूबी में एक दुकान सील, जबकि 77 गिराफरोशों पर 4,57,000 जुर्माना आयद। शर्की में 67 गिराफरोशों के खिलाफ 7,71,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिला वस्ती में 51 गिराफरोशों के खिलाफ 2,92,000 रुपए जुर्माना। गरबी में 9 गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 86,000 रुपए। मलिर में 36 गिराफरोशों पर 1,85,000 रुपए, जबकि डिप्टी कमिश्नर कोरंगी में 41 गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लाख रुपए के माड़ी में 20 गिराफरोशों पर 33,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। FBI की टीम की कार्रवाई। जांच में महमूद स्वीट्स पर पॉइंट्स ऑफ सेल्स की जाली रसीद जारी करने का इंकशाफ। मीडियम टैक्स ऑफिस के डिप्टी कमिश्नर आसिम मंज ने महमूद स्वीट्स को सील कर दिया। FBI की मीडियम टैक्स ऑफ टीम ने शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया। MTO की टीम ने FB एरिया में महमूद स्वीट्स पर जांच की। FBR हुकाम के मुताबिक जांच में महमूद स्वीट्स पर पॉइंट्स ऑफ सेल्स की जाली रसीद जारी करने का इंकशाफ सामने आया, जिस पर मीडियम टैक्स ऑफिस के डिप्टी कमिश्नर आसिम मंज ने महमूद स्वीट्स को सील कर दिया। साथ ही मीडियम टैक्स ऑफिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील करके नोटिस भी जारी कर दिया। हिदायत दी कि पिछले टैक्स वाजिबात के साथ जुर्माना भी आयद होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध की शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग शुरू होते ही चीनी सस्ती होना शुरू हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी 26 रुपए कमी के बाद 196 से कम होकर 170 रुपए फी किलो पर आ गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक इस माह के आखिर तक चीनी 125 रुपए और रमजान से कबल 100 रुपए किलो तक आ सकती है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट।
क्रशिंग के आगाज से ही चीनी की कीमतों में हैरान कुन कमी, दरामदी पॉलिसियों और मकामी पैदावार के मौसर निज़ाम से कीमतों में इस्तेहकाम आने का इम्कान। कराची में चीनी की कीमतें तेजी से नीचे आना शुरू हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 26 रुपए फी किलो की कमी, जिसके बाद 196 रुपए से कम होकर 170 रुपए फी किलो पर आ गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि सिंध की तमाम शुगर मिल्स में क्रशिंग शुरू हो चुकी है, जिससे सप्लाई बेहतर हुई है और मार्केट मुस्तहकम हो रही है। देखें, ये डिक्लाइन आना था और ये वक्त की ज़रूरत थी। देखें, शुगर मिल मालकान तकरीबन 8 मिलें ओन हुई थी 32 में से, और आज माशाल्लाह तकरीबन सभी मिलें स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये इसी की वजह से रेट डाउन होगा और ये जाके 100 रुपये किलो तक पहुँचेगा। ये मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि क्रशिंग के आगाज के बाद चीनी के दाम मजीद कमी की जानिब बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि इस माह के इख्तिताम तक चीनी 125 रुपये फी किलो तक आ जाएगी, जबकि रमज़ान से कबल चीनी के 100 रुपये फी किलो तक आने का इम्कान है। मैं समझता हूँ कि इस माह इख्तिताम आप 125 रुपये 125 रुपये किलो देखेंगे, और रमज़ान में इंशाअल्लाह 100 रुपये किलो देखेंगे इंशाअल्लाह। इसकी कॉस्टिंग ही 80 रुपये होती है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वतन हमारा है, ये मट्टी हमारी है, और काश्तकार किसान भी, उनको रेट क्या मिल रहा है आप सोचें। तो इस पे चीनी का जो मामला बनता है वो 80 रुपये बनता है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स के मुताबिक नई क्रशिंग और वाफिर स्टॉक की वजह से चीनी की कीमतें मजीद कम होने की तवक्का है। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का एहतजाजी कैंप। 166 दिन बीत गए। JEST PST उम्मीदवार ताहाल सरापा एहतजाज, कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। मुज़ाहिरीन का शिकवा, मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला या बिलावल हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज का इंदिया। कहा हमारी उम्रें ज़्यादा हो रही हैं, ज्वाइनिंग लेटर जल्द जारी किए जाए। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA पास के GESTB PST उम्मीदवार पीछे हटने को तैयार नहीं। एहतजाजी कैंप को 166 दिन हो चुके हैं, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। मुजाहिरीन ने कहा कि हम चंद रोज बाद अपनी आवाज पहुंचाने वजीर आला हाउस की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। हम अगला जो हमारा लाए अमल होगा, हमने कानूनी कार्रवाई भी कर चुके हैं, हाई कोर्ट से फैसले जीत चुके हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद तक, इंटरनेशनल मीडिया तक भी हमने अपना पैगाम पहुंचाया हुआ है। तो अब हम CM हाउस के बाहर जो गेट है वहां पर डायरेक्ट धरना देकर बैठ जाएंगे, या फिर हम बिलावल हाउस के जो गेट है वहां पर बैठ के धरना देंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और कानूनी हक है। इंशाल्लाह ताला हम अगला जो नेक्स्ट पावर शो होगा वो CM हाउस के बाहर होगा या बिलावल हाउस के बाहर होगा। मुजाहिरीन ने कहा कि पुलिस हमारा रास्ता ना रोके, हम अपना एहतजाज पुरअमन रखेंगे। एहतजाजी कैंप में शरीक उम्मीदवार ने तरन्नुम के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। टेस्ट लेकर पास करके अब हमें नहीं जानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं ये मानते। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हमारी उम्रें ज्यादा हो रही, ज्वाइनिंग लेटर जल्द जारी किए जाएं, हमारे जायज मुतालबात को पूरा किया जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रवां साल अब तक हैवी ट्रैफिक की टक्कर से 241 अफराद जाबाक हो चुके हैं। 11 माह के दौरान इस हवाले से हादसात जो है वो रूनुमा होने वालों का डेटा सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। मेराज अख्तर की ये रिपोर्ट। शहर की सड़कों पर डंपर्स का खूनी खेल जारी, इंतजामिया के दावे और वादे बेसूद साबित हुए। शहर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका, शहरी कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं। रवां साल के दौरान हैवी ट्रैफिक की जद में आकर मजमूई तौर पर 241 शहरी अब्दी नींद सुला दिए गए। हादसात में जहां भाग होने वालों का डेटा सिटी 21 ने हासिल कर लिया। कराची में डंपर्स की टक्कर से 41 अफराद जहां भाग हुए, ट्रॉलिक्स की टक्कर से 93 अफराद जहां भाग हुए, वाटर टैंकर्स की टक्कर से 55 अफराद जहां भाग हुए, मजदा की टक्कर से 20 अफराद जहां बाक हुए, जबकि बसों की टक्कर से 32 अफराद जहां बाक हुए। पुलिस के मुताबिक हादसात के जिम्मेदार ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए हैं और पुलिस हादसात की रोकथाम के लिए काम कर रही है। मेराज अख्तर, सिटी 21। गैर मुल्की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला, IG सिंध ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। वजीर दाखिला ने भी तमाम सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की
सिक्योरिटी मास्टर बनाने की हिदायत जारी कर दी है। IG सिंध की जानिब से महकमा दाखिला को खत लिखा गया है और इसमें चीनी बाशिंदों के हवाले से तफसीलात शेयर की गई हैं, जबकि तमाम कमिश्नर्स और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को 960 चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से आगाह कर दिया। खत के मतन के मुताबिक सिंध सी पैक और नॉन सी पैक पर काम करने वाले 960 चीनी शहरियों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की गई है। सखर बैराज की बहाली पर 72, सखर बेवरेजेस कंपनी में 2, ओबाड़ो में 1 चीनी शहरी काम कर रहे हैं। लाड़काना में 1 और कश्मोर में 11 चीनी शहरी काम कर रहे हैं, जबकि थरकोल पावर प्रोजेक्ट पर 835 और नबी वाटर सप्लाई पर 38 चीनी शहरी काम कर रहे हैं। खत में उनकी सिक्योरिटी सख्त करने की दरख्वास्त की गई है। महकमा दाखिला ने भी नॉन सी पैक पर काम करने वाले 960 चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इकदाम सख्त करने की हिदायत कर दी है। कमिश्नर, DIGs और SPU को सिक्योरिटी की खुद निगरानी की हिदायत की गई है और कहा गया है कि चीनी शहरियों के नकलो हमल के दौरान सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। केमाड़ी पुलिस के हाथों पाक कॉलोनी से गिरफ्तार मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड सिटी 21 ने हासिल कर लिया। मुल्जिमान 25 से ज़ायद मुकदमात में मुलविस निकले। पाक कॉलोनी पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी अरबाज, हसन, अली नवाज और आसिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद आदि जराइम पेशा है, जिन पर मुनशियात फरोशी, असलहा, पुलिस पर फायरिंग, डकैती और चोरी जैसे मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई मुनशियात फरोश काशिफ के अड्डे पर की गई थी, जहां फायरिंग के दौरान एक मुल्जिम ईद बादशाह उर्फ अलियास फरार हो गया, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान से 3 पिस्तौल, आइस, नकदी और 2 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। NCCI कराची का DHA में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा, बैंक अकाउंट्स हैकिंग में मुलविस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से हैकिंग डिवाइसेस, मोबाइल फोन बरामद कर ली गई। एडिशनल डायरेक्टर NCCI कराची तारिक नवाज के मुताबिक मुल्जिमान में L1, मलिक निसार, शहराज तारिक, शहरयार तारिक और वॉइस शामिल हैं, जबकि कॉल सेंटर का मालिक जवाद खान इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कराची की टीम खुफिया इतला पर पहुंची तो मालूम हुआ कि डिफेंस फेज 6 बड़ा बुखारी में हैकिंग का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाया जा रहा था। मुल्जिमान बैरून मुल्क डिजिटल वारदातों में मुलविस हैं। मुल्जिमान बैरून मुल्क लोगों के बैंक अकाउंट हैक करते थे। हैक शुदा बैंक अकाउंट से मुख्तलिफ अकाउंट्स में रकम ट्रांसफ़र करते थे। सर्चिंग के दौरान 11 CPU, 1 लैपटॉप, 13 मोबाइल फ़ोन मिले। तलाशी के दौरान मुख्तलिफ अहम दस्तावेजात को भी कब्जे में ले लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेंजर्स और कस्टम्स ने जोड़िया बाजार में स्मगलिंग माफिया के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की है, जिसके दौरान भारी मिकदार में स्मगल शुदा छालियां और सिगरेट्स बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक स्मगल शुदा सामान गोदामों और दुकानों में छुपाया गया था। स्मगल शुदा अशिया सामान को कस्टम्स के हवाले भी कर दिया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं इस रिपोर्ट में। नताइज में मुबैना रद्दोबदल केस, साबिक चेयरमैन इंटरबोर्ड सईद उज़ जमा और दीगर के खिलाफ पक्का चालान सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। अदालत ने चालान मंजूर करते हुए तमाम मुल्ज़िमान को नकुल फराहम कर दी। IT डायरेक्टर शरीफ वकार को भी मुल्ज़िम नामजद करने की मंजूरी। साबिक कंट्रोलर ज़हीर भुट्टो और हारिस फारूकी को बेगुनाह करार देने की रिपोर्ट मंजूर। अदालत ने फर्ज जुर्म आयद करने के लिए अगली तारीख 8 जनवरी 2026 मुकर्रर कर दी। छठा में सियासी शख्सियत के सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का केस, सिंध हाई कोर्ट का बानी PTI के केसेस को अदालती नज़ीर के तौर पर लेने से इनकार। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI के मुतनाज़ा केसेस हैं, उन केसेस को नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सूफी, असद अली, अजहर अली, वारिस और सैयद जुहैब की हिफाजती जमानत से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पुराने वाजबात की वसूली की इजाजत देने का केस, MKM रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी के नेपरा की SRO के खिलाफ दरखास्त। आईनी बेंच ने MKM रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नेपरा के फैसले की रोशनी में के इलेक्ट्रिक का मौकफ दुरुस्त मालूम होता है। कमसन बच्ची से जिनसी ज्यादती करने वाले दुरंदे के खिलाफ जुर्म साबित। वस्ती की अदालत ने मुजरिम सैयद मोहम्मद अली आबदी उर्फ मूबी को मजमूई तौर पर 39 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिम पर मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। अदाकारा और मॉडल नादिया खान के शौहर आतिफ खान की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम आतिफ को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत कर दी। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। सदारती उम्मीदवार वकार आलम अब्बासी ने जीत का दावा करते हुए सिटी कोर्ट का माहौल बेहतर बनाने को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में।
कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात करीब आते ही इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। उम्मीदवार वकला वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए सरगर्म हो गए। सदारती नशिस्त के उम्मीदवार वकार आलम अब्बासी भी इंतखाबी मुहिम में भरपूर तौर पर मसरूफ हैं। वकला से मुलाकातें, मुसाफे और वोट की अपीलें जारी हैं। वकार आलम अब्बासी गुज़िश्ता माह सिंध बार कौंसिल का इलेक्शन भी जीत चुके हैं। उनका कहना है कि सिटी कोर्ट का माहौल बेहतर बनाना उनकी अव्वली तरजीहात में शामिल है, जबकि वकला को दरपेश मुतअद्दिद मसाइल उनके मंशूर का हिस्सा है। सिंध बार काउंसिल में हमारे वकला ने रिपीटर्स को जो है वो डिस्करेज किया। फिर हाई कोर्ट के इलेक्शन में जो है आपने देखा कि हमारे दोस्तों ने जो है वो रिपीटर्स को डिस्करेज किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर भी कराची बार में भी जो रिपीटर्स हैं उनको वकला डिस्करेज करेंगे। वकार आलम अब्बासी की टीम भी उनके हमरा मौजूद है, जिनका मौक़िफ़ है कि बार की बेहतरी के लिए तब्दीली ज़रूरी है और दोबारा इलेक्शन लड़ने वालों से निजात चाहते हैं। हमेशा जब भी इन पे फेथ किया, इन्होंने हमारे फेथ को कभी डैमेज नहीं किया और वकलाओं की फलाह के लिए हमेशा काम किया और इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि ये करेंगे। बतौर जनरल सेक्रेटरी तो हम उनके वजह से उसको हमने काफ़ी एडमायर किया था कि भाई ठीक है, आपने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जो बार की फलाह किए थे। देखिए, बार की फलाह इस सूरत में हो सकती है जब आज़ाद बार हो। हमारा वर्क अच्छा है, हम ज़रूर जीतेंगे और जो मुखालिफ कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है वो उनका पहला इलेक्शन हमारे ही ग्रुप से लड़ा था और वकार आलम अब्बासी ने ही उनको लेकर आए थे हमारे ग्रुप में। और पहला इलेक्शन जॉइंट सेक्रेटरी का जो लड़ा गया था 2016-17 की बात है, तो हमारे ही ग्रुप से लड़ा था और हमने ही उनको इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मतलब इतना ऊपर लेकर गए। अल्लाह ताला खैर करेगा। बाकी इंशाल्लाह इनको भी करेंगे। 2023 में भी इन इश्यूज़ पे जो है हमारी एक्टिविटीज़ रही हैं। जब वकार आलम अब्बासी सेक्रेटरी था उस वक्त भी उन्होंने ये जो सिग्नल के इश्यूज़ हैं इस हवाले से कंपनीज से रब्ता भी किया, कंपनीज आई भी, लेकिन ये थोड़ा देर पा हल होने वाला मसला है। लेकिन उस वक्त भी हमने किया और इंशाल्लाह आके हमें यकीन है वकार अब्बासी इस पे ज़रूर कोई एक्शन लेगा। कराची बार के इंतखाबात दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होंगे। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमारी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।